I'm joining with the other mobile. Please admit me. Okay, sure, Ritika, you can join the session from the other handset. I'll admit you. No problem. Okay, I will be sharing the screen and you have to tell me if the screen is visible or not. Okay, just a moment. Yeah. I since this is a combined lecture, okay, I don't know A division में मैंने कहाँ पे stop किया. Completely new answer, okay, so that you know, दोनों class में एक ही answer continue रहे. All right, we have already started with the second chapter, which is answer, which is violence against women. We have seen types of violence, then people who are responsible for violence. We have also seen types of victimizers, causes of violence, okay, what are the effects of violence, and then now I don't remember कि steps to prevent violence कौन से division में हुआ है. Hence I'm taking another answer, which is portrayal of women in mass media. Okay, I hope my voice is audible. Online में से कोई please confirm करते जाना. Yes, ma'am. All right. Okay. So we begin with the new answer, which is portrayal of women in mass media. आपको क्या लगता है mass media powerful है या नहीं है? बहुत powerful है ना? Right ना? Don't you think mass media is very powerful? Guys, if you're not replying तो मैं ये assume करूंगी कि मेरी आवाज नहीं आ रही है. I hope my voice is audible. ma'am. Yes, ma'am. Okay. So in my opinion, okay, I don't know, you might have a different opinion, but in my opinion, I think mass media is a very, very powerful tool, okay, or today, okay, mass media is, actually it's a very wide concept. अगर मैं अभी mass media पढ़ाने जाऊँ तो it's a very wide concept, okay. लेकिन let us understand कि इसको simplify कैसे करना है, तो ये अंडरस्टैंड करो कि विमेन को टीवी पे कैसे दर्शाते हैं. ओके, बी इट यू नो से मूवीज, बी इट वेब सीरीज, या फिर डेली सोप्स में वुमेन कैसे पोर्ट्रे की जाती है. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दैट थ्रू दिस आंसर. One suggestion before I start with this, how many of you are using Amazon Prime? कोई है Prime का member? Yes, Yes, ma'am. ma'am. I suggest you to please watch if you have time. Okay, Right, it's a very good please, movie. meaningful movie. For youngsters. I don't think so. Let us not confine to only youngsters, for everyone. Okay, हर किसी को ये मूवी देखनी चाहिए, तो आपको समझ में आएगा कि सिस्टम कैसा बना हुआ है. ओके, लूपहोल्स क्या थे सिस्टम में, ओके, क्या किया जा सकता है उस पूरे मूवी में. द स्टार ऑफ द मूवी वाज दैट यू नो, आप कानून को सही तरीके से अगर यू नो इम्प्लीमेंट करते हो तो आप बहुत चेंजेस कर सकते हो. यू कैन मेक ड्रास्टिक चेंजेस. ओके, तो आई सजेस्ट यू, मैंने एक्चुअली पूरा मूवी का ये नहीं रिवील करना चाहती हूँ. जिन्होंने नहीं देखा है, लेट देम हैव द क्यूरियोसिटी, प्लीज वॉच दिस मूवी. ओके, इफ यू गेट टाइम. अभी मैंने ये सजेशन इसीलिए दिया बिकॉज जैसे वहां पे कानून, लॉ एक पावरफुल टूल था, वैसे अभी जब आप ये आंसर स्टडी करोगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ मास मीडिया इज अ पावरफुल टूल. Okay, I'm sharing the screen. You please tell me if the screen is visible or not. I hope the Visible, screen. ma'am. It's visible. All right. So we move on to the new answer, which is portrayal of women in mass media. Arya, if you can read. Yeah, ma'am. The mass media include TV, radio, newspapers, magazines, outdoors, hoardings, cinema, social media networks, and so on.
The mass media play a positive as well as a negative role in the portrayal of women in India. Okay, we will first see the positive role. आपको इंट्रोडक्शन में क्या बोला है कि मास मीडिया क्या है? अभी अगर मैं आपको आपको क्लासिफाई करना चाहूँ, मास मीडिया है, ओके, तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, which includes television, okay, which includes social media platform like Facebook, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऑल राइट। और डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन इनका सर्कुलेशन भी हमारे कंट्री में बहुत अच्छा होता है। लोग आज भी, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया का ऐप आ गया है, फोन के ऊपर आप न्यूज फीड डाल दो, आपको सब न्यूज मिलेगी, ओके, तो भी लोगों के अंदर वो जिज्ञासा, वो क्या क्यूरियोसिटी है न्यूज़पेपर खरीद के पढ़ना, ओके। पीपल बाय इकोनॉमिक टाइम्स, मिड डे, ओके, ऐसे सब न्यूज़पेपर खरीदते हैं, ओके। इट्स एज गुड एज एडिक्शन। जैसे लोगों को चाय का कैसे एडिक्शन होता है, वैसे न्यूज़पेपर का होता है, okay, the newspaper, magazines, hoardings, all these are not a digital platform for mass media. And on the other hand, television, okay, then social media platform हो गया, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, okay? तो मास मीडिया का दो मेजर क्लासिफिकेशन है। इसके जरिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन लोगों तक जाता है, okay? ऑफ कोर्स, तो वुमेन को कैसे, अभी क्योंकि कोई चीज बहुत पावरफुल है, तो उसे यूज भी अच्छे से करना चाहिए ना, राइट? So let us see how positive role of mass media is there towards women. Point number one is highlights women related problems. Okay, Arya. The mass media such as TV and newspaper news and programs highlight the problems faced by womenfolk in India. Violence against women related incidents are highlighted in the media. This catches the attention of the police, judiciary, and the government. For instance, a Mumbai-based judge that to a lady judge gave a light punishment to a rapist. The media, especially the newspapers, denounced the judgment, and the lady judge was subsequently transferred. The media also reports atrocities against women, which awakens the police and the government to take suitable actions. ओके, तो पॉजिटिव रोल देखो ये कैसे वुमेन के फेवर में जा रहा है, ओके। पॉइंट नंबर वन इज इट इज हेल्पिंग टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन, ओके। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा गया कि मुंबई बेस्ड जज, वो भी एक लेडी जज, ओके। ऐसे तो इवन मैन कैन अंडरस्टैंड द पेन, बट अ लेडी जज, ओके, what did she do? She gave a very light punishment to the rapist. Okay, rape is an extreme crime. Okay, और उन्होंने क्या किया, क्या है, देखो मास मीडिया ने कैसे उस चीज को हाईलाइट किया। इट केम ऑन द न्यूज़पेपर, ओके, एंड शुड बी वेरी ashamed of yourself कि आपने आपके पावर का सही यूज नहीं किया, ओके। आई थिंक मास मीडिया ना कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी समझते हो स्टूडेंट्स, ओके? आप कोई भी चीज छुप छुपा के नहीं कर सकते हो। गॉन, चला गया वो दिन जब आप यू नो और ये सारी चीजें कर सकते थे। नाउ एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट। आपने एक गलत मूव किया, you will be caught in the front of camera. I don't know if you know this, अगर आप लोग YouTube या फिर फेसबुक वगैरह देखते हो, तो उसमें आपने देखा है लोग आजकल क्या करते हैं, उनको जरा सा भी फील हो रहा है ना गलत हो रहा है, फेसबुक लाइव पे चले जाएंगे। देखा है आपने, इंस्टाग्राम लाइव पे चले जाएंगे, ओके। कोई भी रेस्टोरेंट में अगर किसी ने आपको ब्लफ किया, आप उस पे गो लाइव। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अगर आपसे ब्राइब मांग रहा है, रिश्वत मांग रहा है, तो आप लाइव कैमरा चालू कर देते हो, ओके। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज इन फेवर, ओके, ये हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि मास मीडिया आपके रूप को सबके सामने दर्शा देगा। तो अभी ये वाला केस कि बॉम्बे में जो एक रेप केस हुआ था, उसमें लेडी जज ने बहुत लाइट पनिशमेंट देने पर, ओके, हर जजमेंट वाज बीइंग क्वेश्चन, हर डिग्निटी वाज बीइंग क्वेश्चन, एंड शी वाज देन आस्क्ड टू गेट अ ट्रांसफर, ओके। सेकेंड पैराग्राफ क्या बोल रहा है, और भी वुमेन के ऊपर जो एट्रोसिटीज होती है, स्पेशली चैलेंजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन, ओके। किसी वुमेन के कैरेक्टर, उसके कास्ट, इन चीजों पे, उसके रंग, यू नो उसका बॉडी शेप, अगर इन चीजों के ऊपर भी कुछ हाईलाइट होता है, तो मास मीडिया इज ब्रिंगिंग इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन।
मास मतलब क्या, लोग, ओके, मीडिया इज द चैनल, ओके। अब ये लोगों तक ये जब पहुंचाते हैं तो ऑटोमेटिकली यू विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, बिकॉज आपने कुछ गलत किया तो पूरा दुनिया आपको देख रहा है। एंड टुडे बाय द वे द ग्लोबल मीडिया इज वाचिंग यू, ओके। ऐसा नहीं है आप टीवी में कुछ चला रहे हो तो सिर्फ इंडिया के लोग देख रहे हो उसको, ओके। अदर कंट्रीज आर ऑल्सो वॉचिंग यू कि आप क्या स्टुपिडिटी करते हो, करेक्ट ना? तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो ये वुमेन के फेवर में चला गया, इसीलिए इसे हम पॉजिटिव रोल में काउंट करेंगे कि मास मीडिया की वजह से जो भी वुमेन रिलेटेड इश्यूज है इट कैन बी हाईलाइटेड, ओके। आप लोगों तक वुमेन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर सकते हो, सो दैट इज अ पॉजिटिव रोल। Okay, we move on to the second one, which is social support to women. If Ritika is there in the session, she can also read the second point. If she's not there, then I have to request Arya only to continue reading. Okay, Arya, you can continue. The mass media provides social and moral support to women in India. The mass media makes women aware of their constitutional rights through editorials and programs. The media, especially the press media, undertakes social awareness campaigns such as Concern for the Girl Child, Anti-Dowry Campaign, Maternal and Child Care Campaign, etc. The media also carries special reports on certain occasions, such as on Mother's Day, second Sunday of May, highlighting the important place of a mother or woman in the family. Okay, now social support to women. Let me tell you this. This is not something very new. In fact, you can relate to it because you all are college-going students. आप में से कितने सारे students NSS के member होंगे, NSS volunteers होंगे. तो अभी तो कॉलेज ब्लेंड में है, ऑफलाइन ऑनलाइन। जब पूरा ऑफलाइन हो जाएगा ना, यू विल बी पार्ट ऑफ अमेजिंग कैंपेन्स, ओके, विच इंक्लूड्स कंसर्न फॉर गर्ल चाइल्ड, ओके। सिंस इन आवर कंट्री मेल डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, तो गर्ल चाइल्ड के लिए कंसर्न खाना, उन्हें भी न्यूट्रिशियस फूड का अधिकार है। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद वन ऑफ द कॉन्सर्ट इन बॉम्बे, एंड वो कॉन्सर्ट के पहले उन्होंने एक ड्राइव किया था, ओके। जिस ड्राइव में उन्होंने क्या बोला कि women of any shape and any shade is beautiful, so she can come and do modeling. There is absolutely nothing, you have to be very tall and very fair and very beautiful, etc etc. तो उनका मोटिव क्या था, okay, ये ड्राइव करने का कि every girl is beautiful, okay. In fact they said that ये जो competitions होते हैं ना, मिस इंडिया और फेमिना मिस इंडिया, मिस नवी मुंबई, ये सारे कॉम्पिटिशन्स को उन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्यों आप लोग ऐसे ही मॉडल्स लेते हो जो स्लिम हो, जो टॉल हो, जो फेयर हो। व्हाई आर यू डिफाइनिंग ब्यूटी? क्योंकि ब्यूटी को डिफाइन नहीं करना चाहिए, राइट? If a white color is beautiful, so what, it's a social support kind of towards the women. तो ये देखो, ये भी एक मास मीडिया के जरिए हो रहा है that women has been able to portrayed in a positive way. फिर एंटी डाउरी कैंपेन कर सकते हो, जहाँ पे आप लोगों तक पहुंचा सकते हो इंफॉर्मेशन की देयर इज नो नीड टू पे डाउरी एंड ऑल टू एनीवन। इन फैक्ट वन शुड रेज स्ट्रॉन्ग वॉइस अगेंस्ट इट, ओके, कि डाउरी रॉन्ग है और इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ओके। एवरी स्टूडेंट, ओके, हुएवर इज देयर ऑनलाइन में भी जो सुन रहे हो ना, ध्यान से सुनो, आपको कभी डाउरी को सपोर्ट नहीं, गर्ल स्टूडेंट स्पेशली, आपके घरों में ऐसी बातें होती होगी और उनको लगता होगा कि करेक्ट है, और वो आपके माइंड में भी फिट करते होंगे नहीं यही करेक्ट है, यही सोसाइटी का रूल एंड पैटर्न है, ओके। बट आपके एजुकेशन का क्या फायदा अगर आप इस चीज को हाँ में हाँ मिलाते जाओ, ओके। Raise your strong voice against dowry, especially, and boys also in the session, please do not accept dowry and all, okay, you all are capable enough, आपको किसी डाउरी की जरूरत नहीं है, okay. I think the boys in the session are going to hate me right now, but you don't need money, right? You are capable enough. तो अगर आप डाउरी लेते हो मतलब आप capable नहीं हो, okay? इसलिए आपको डाउरी लेना पड़ रहा है, okay? तो मास मीडिया के जरिए आप एंटी डाउरी कैंपेन्स कर सकते हो। देन लास्ट में क्या लिखा है यहाँ पे, मेटर्नल एंड चाइल्ड केयर कैंपेन कर सकते हो। तो थ्रू मास मीडिया यू कैन स्प्रेड द message and spread the voice. I think so, students. Awareness itself
is a very smart move and half done. ओके ऐसा बोलते हैं ना, शुरुआत ही कर, अगर आप कोई चीज शुरुआत तो कभी खत्म नहीं होगा, है ना. तो अवेयरनेस itself is half done. So I think with the help of mass media, you can get into campaigns which will have social support towards women. Also, then media can carry out some special days dedicated to the girl child, dedicating to mother. मैंने especially believe करती हूँ, मुझे लगता है every day the world cannot run without girls, okay, or without women, okay. It cannot run without men also, but ऐसा कोई day नहीं celebrate करना चाहिए, okay. Every day should be celebrated as a Mother's Day or a girl child day, whatever. क्या बोलते हो उसे, Daughter's Day, okay, Princess Day and all that. I think it should be celebrated every day. Moving on to the third one, which is women's status in society. Okay, Arya. The mass media may try to improve the woman's status in the society. Stories of successful women like Kiran Bedi, former IPS officer, Kiran Mazumdar Shaw, industry, Mrs. Indira Gandhi, politics, are highlighted in press and other media. Such stories kindle a ray of hope and develop aspiration in the minds of young women, and they venture out for successful careers, encouraging support to their daughters. I think this is very interesting. With the help of mass media, you can highlight the success stories of women. Okay, क्यों आपको हमेशा एक वुमेन को बिचारी टाइप दिखाना है? ओके जैसे कि डेली सोप्स में आप देखते होगे ना, वो एक बिचारी सी बहू, उसके ऊपर जुल्म हो रहा है. आई थिंक हाई टाइम, ओके, शो द सक्सेस स्टोरीज ऑफ किरण बेदी, मदर टेरेसा, सानिया नेहवाल, ओके, इनके बारे में आप बातें करो, which is going to inspire students. Correct me if I'm wrong, मुझे ऐसा लगता है that women should be women's best friend. ओके एक औरत किसी और औरत की एक अच्छी दोस्त होनी चाहिए. Do you agree with this? In the lecture, what about others? I expect no, at least yes, no तो बोल सकते हो. Yes, ma'am. हाँ हाँ. So, but sadly, students, your woman is not the woman's best friend. Okay? In fact, what I feel is most of the time, क्या होता है पता है? There is a, there is a kind of क्योंकि मेरे साथ वो तो मैं इसके साथ भी ऐसे ही करूंगी. Okay, this is most of the mother-in-laws. They tend to have this kind of behavior. Most of the aunties in the society who has got a lot of problems with what you wear and what you do and what makeup you on yourself. So I think woman is not woman's best friend in our country. Okay, तो आप लेकिन फिर भी okay, with the help of mass media, successful stories, okay, अगर women की portray करते हो, automatically it is going to motivate a lot of women out there. मैं खुद कितना मोटिवेट होती हूँ जब मैं किसी और वुमेन को स्ट्रगल करते हुए. ऐसा नहीं है कि मैं किसी नॉमिनेशन सिर्फ दीपिका पादुकोण से या फिर सानिया नेहवाल से या सानिया मिर्जा से ही आती हूँ. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इवन इफ इट इज इवन इफ शी इज नॉन वर्किंग, फॉर एग्जाम्पल, when I come to college ना, तो I sit towards east. Okay, तो वहां से यहाँ पे आने के लिए जो बीच में जो रास्ता है ना, वो थोड़ा स्लम लोकेशन से गुजरता हुआ आता है. मैं कभी कभार देखती हूँ कुछ वुमेन इतनी मेहनत करते हुए, दे आर डूइंग द हाउस होल्ड वर्क, ओके, पानी भरते हुए जा रहे. बहुत somebody has to tell them, they are doing great job. ओके अगर वो ये नहीं करेंगे तो आपका घर कैसे चलेगा फिर, राइट? So I take inspiration from every woman who is struggling. Okay, and then you shine better, when you struggle and when you get success. Okay, you shine better. I think हम सबका है ना,
जिंदगी में कुछ ना कुछ तो पर्पस है। ओके, 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आई थिंक मैंने पहले भी बोला होगा आपको लेक्चर में। डे 1 जब आपका जन्म हुआ था, एंड डे 2 जब आपको पता चल जाए कि आपका जन्म क्यों हुआ है, व्हाई यू आर बॉर्न। ओके, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। ये जिस हम सब टेम्पररी है यहाँ पर, राइट? So try to become very successful, especially girl students. Whoever, of course, I want my boy students also to do great wonders. Okay, बट मैं दिल से चाहती हूँ कि हर एक लड़की जो सेशन सुन रही है, प्लीज प्लीज बी वेरी सक्सेसफुल, बिकॉज द कंट्री हैज बीन ऑलरेडी, not just country, I think the society has, your family itself might have been very unfair with you, correct ना? आपके ब्रदर को जितना अपॉर्चुनिटी मिला शायद आपको नहीं मिला है उतना, राइट? So I would urge every girl in the session to become successful, and I think the only way to shut them out of the society is when you become successful. So yeah, you can portray them. मैं जब स्कूल में थी, मदर टेरेसा वगैरह के हमको ना ये होता था, स्क्रीनिंग होता था, तो उसमें दिखाते थे कि मदर टेरेसा ने कैसे सोशल वर्क किया, कैसे लोगों को हेल्प की। यू कैन डू दैट ऑल्सो। आई थिंक फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप खुद सक्सेसफुल बन जाओ। जब आप सक्सेसफुल होंगे तो आप डेफिनेटली यू कैन गिव इट बैक टू द सोसाइटी। आई थिंक वो करना बहुत जरूरी भी है। कंपल्शन वर्ड नहीं बोलूंगी, लेकिन आई थिंक डू इट वंस, यू विल फील वेरी हैप्पी। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 50,000 कमा रहे हो, एक 500 रुपये किसी गरीब को दे दो, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने वो, शायद आपके माइंड में ये भी है मैं 500 रुपए का मैकडोनल्ड्स का बर्गर और कोक पी लूं, लेकिन एक बार ट्राई करो कि जब आप 50,000 कमा रहे हो तो 500 डोनेट करो, 1 लाख कमा रहे हो तो 1,000 डोनेट करो, डू समथिंग लाइक दैट। एंड माई सजेशन इज डोंट गिव इट टू एनी एनजीओ और एनी डायरेक्टली। आपको इस देश में गरीब को ढूंढने की जरूरत नहीं है, करेक्ट ना? यू स्टेप आउटसाइड एंड यू फाइंड सो मेनी पीपल आउट देयर, सो हेल्प देम डायरेक्टली। So, okay, then the last point is women empowerment. All right, Arya. Media boosts morale of women and make them fight against injustice and social evils. When women are encouraged by media, they rise against the bad practices or evils in the society. For instance, stories of women groups fighting against social evils like addiction to alcohol by male members. They put pressure on village liquor shops to close down. Such stories are published in the media, which gives a boost to women in other villages to do the same. आई थिंक मैं अगेन आपको बोलूंगी, वो जय भीम मूवी में संगिनी का जो स्टोरी था, द द मेन कैरेक्टर ऑफ द मूवी, एक्चुअली पूरा मूवी उधर ही उसमें ही रिवॉल्व कर रहा है, स्ट्रगल स्टोरी ऑफ संगिनी। तो कैसे उसने थ्रू आउट स्ट्रगल किया। सिमिलरली अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दैट इज टू एम्पावर दी अनदर वुमेन। ओके, तो media can portray the stories of women which will empower another woman. For example, अगर सारी औरतों ने डिसाइड कर लिया कि भाई यहाँ इस गांव में डेली ये जो शराब का जो ये दुकानें हैं, इसके वजह से हस्बैंड्स ड्रिंक करते हैं और घर में तमाशा होता है, या फिर वो काम नहीं करते, whatever, let us close down the shop of liquor. ऐसा हुआ है, मैंने किसी ट्राइबल विलेज में सुना था कि ऐसा हुआ था। तो सारी औरतों ने क्या किया, जाके वो जो शराब की भट्टी बोलते हैं उस समय की, तो वो पूरा बंद करवा दिया। ओके, जहाँ पे देसी दारू बनता है, ओके, तो उन्होंने वो बंद करवा दिया। तो वहां का ना किसी लोकल न्यूज़पेपर वाले ने ना उसको छाप दिया कि कह रहे देखो यहाँ की औरतों ने क्या किया है। यू नो वॉट, इट टर्न्ड आउट टू बी एम्पावरिंग सो मच। आसपास के जितने विलेजेस है ना, सब औरतों ने वो करना स्टार्ट कर दिया। दे स्टार्टेड मीटिंग, ओके चलो मिलते हैं, मिलकर ये किया जा सकता है, वी कैन चेंज आवर फैमिली लाइफ if we come together and if we shut down the shops of liquor. Okay, तो ऐसी स्टोरीज के जरिए आप डेफिनेटली एम्पावर कर सकते हो विमेन को। तो आई थिंक ऑल दीज पॉइंट्स वर समथिंग व्हिच इज टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव साइड। कितना मिनट है लेक्चर खत्म होने के लिए? 40। वी हैव सम टाइम ना, कैन वी टेक 1 पॉइंट ऑफ नेगेटिव रोल? यस मैम। ना, ठीक है, तो एक
फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, depicts women in poor taste. Okay, जितना मीडिया, every coin has got two sides, a head and a tail. Okay, हर सिक्के का दो पहलू होता है, तो जहाँ पे हमने देखा कि पॉजिटिव इफेक्ट इतना अच्छा है, तो कुछ ना कुछ मीडिया ने नेगेटिव भी कर रखा है. Let us understand how it is mentioned. Yeah, Ritika, you are there in the session? No? मैम No. उसका वो नेट प्रॉब्लम दे रहा है, हाँ, so तो she is आर्या, not able. okay, so if you don't mind, can you continue? Yeah. Okay. Depicts women in poor taste. Mass media depict women in poor taste. For instance, mass media depict women in poor taste, vulgar in some advertisements by unethical advertisers. This can have adverse effect on males as well as young females. Young female models are shown in certain ads with scanty clothes and in vulgar poses. The media owners, instead of rejecting such ads, willingly accept on revenue ground. Apart from the ads, some newspapers show photographs of semi-nude young females even on the front pages to attract attention. At times, too much coverage is given to females with bare minimum clothes at certain parties or events. In such cases, one cannot blame just the media. It is the women folk who pose for cheap publicity. Are Yeah, at the end of the paragraph mention किया कि मास मीडिया की गलती नहीं है, अगर वुमन खुद ही चूज कर रही है ऐसा गलत मूव, तो उसमें कोई क्या कर सकता है. आई थिंक आप, क्या आप अवेयर हो फेमिनिज्म टर्म से? आपने सुना है ये वर्ड फेमिनिज्म? Yes, आप मेरे को बताएंगे आपको क्या समझ में आता है फेमिनिज्म के बारे में? equal. Equality, okay, very nice, very nice. I Equality for equal opportunities and equal account. तो फेमिनिज्म क्या है कि हर एक औरत के पास चॉइस होना चाहिए कि उसको क्या करना है लाइफ. ओके, अभी आपका फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, मीडिया ना नेगेटिव तरीके से डिपिक्ट करती है वो फीमेल स्टार्स को, जो कि सेमी न्यूड कपड़े या फिर बहुत छोटे कपड़े या वल्गर पोजेस में जिन्होंने फोटोज निकाले हैं या वीडियोस बनाए उसे पोस्ट करके. आई थिंक वुमेन शुड बी ब्लेम्ड ओवर हियर, नॉट द मीडिया. मीडिया विल डू इट्स कमर्शियल, नो, दे वांट टू मेक मनी, उनको तो पैसे बनाने हैं, राइट? लेकिन आई थिंक वुमेन एट द एंड ऑफ द डे शुड डिसाइड कि उन्हें अपनी डिग्निटी कैसे मेंटेन करनी. ऑफ कोर्स अभी मैं फेमिनिज्म क्यों स्टार्ट किया बोलने के लिए, आपके पास डेफिनेटली चॉइस है कि आपको क्या करना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है. डज नॉट मीन कि आप एकदम वल्गर हो जाइए, करेक्ट ना? आप जिस कंट्री में रहते हो, ओके, उसका कल्चर, उसका एसेंस कुछ तो होगा ना. दैट यू आर नॉट इन अ वेस्टर्न कंट्री, यू आर नॉट बोर्न इन यानी यूरोप. हमारे कल्चर को जिसको लेकर हम इतना प्राउड फील करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ हम इस बारे में डिस्कस करते हैं, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं हमें उसे मेंटेन करना होगा. लेकिन सैडली there are women who choose, of course. I think आप अगेन मैं थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से लिटिल बिट कॉन्ट्रोडिक्ट करती हूँ. इट इज द चॉइस ऑफ द वुमेन. कॉन्सिक्वेंसेस, अगर उसको वो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए प्रिपेयर्ड है तो लेट हर डू इट. ओके, इट इज हर चॉइस व्हाट टू वेयर एंड व्हाट नॉट टू वेयर. एक यही हमारा ही देश है जहाँ पे हमने कपड़ों को लेकर इतने साल डेवलपमेंट नहीं सोचकर यही चीजों में रह. साड़ी विच इज सो मच मीटर लॉन्ग, ओके, वो तो भी a good sari however is being worn, okay, somewhere it is also kind of revealing na, as just like western clothes are. So I don't think so this should be the topic of discussions ever. Okay, लेकिन टेक्स्ट बुक बोल रहा है कि मीडिया इसे बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे करके छोटे बच्चे, स्पेशली गर्ल चाइल्ड, कैन हैव अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस एंड में टेक. अभी होता है ना, छोटे बच्चे स्पेशली बॉलीवुड स्टार्स को देखकर दे आल्सो वांट टू बी लाइक दैट. तो आई गेस media is playing a negative role over here by portraying the taste of, poor taste of women. We still have time, and I guess I can take one more point if you allow me, or else I stop. Yes. You can say yeah. Okay, I think I'll stop because the next point is quite lengthy and I don't think so वो ये session
complete हो पाएगा. So I stop here considering that day one after your vacation. Next lecture किसका है आपको? No lecture, ma'am. Only 3 lectures. This is the third lecture. All right. Also now, FY BMS, since A and B, both of you are over here. I don't know why you guys are sending me so many personal messages about the project. Despite of telling you in such a simple, मैंने वो PDF क्यों बनाया था? टाइम पास के लिए थोड़ी बनाया था. उसमें clearly step by step लिखा हुआ है, right? फिर भी मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, मैम आपका मेल आईडी चाहिए. उसके अंदर मेल आईडी लिखा है ना मैंने कि ये मेल आईडी पे प्रोजेक्ट मेल करो, राइट? तो प्लीज डू इट because after this 31st or sorry 30th of November, I will not be accepting the project. Okay, number one. And number two, since my syllabus is little behind, thank God हमें ये भी थोड़ा combined lectures मिल रहा है. तो A और B डिविजन साथ में ही मैं मैक्सिमम आंसर्स कंप्लीट कर सकती हूँ. बट अगर ऐसा हुआ कि मुझे समझो ऐसा लग रहा है कि बिकॉज मेरा सिलेबस बहुत पीछे है, तो मैं ना इवनिंग के टाइम, मॉर्निंग में इसलिए नहीं बिकॉज आई विल बी इन द कॉलेज, ओके, मैं इवनिंग के टाइम में एक्स्ट्रा लेक्चर्स लूंगी एंड यू गाइस हैव टू अटेंड. ओके, ऑलराइट. एनी क्वेश्चंस टू मी? कुछ पूछना चाहते हो? मैम एक्चुअली मुझे एक डाउट था, बिकॉज अगर मतलब कुछ लोग हैं जो एक दूसरे का प्रोजेक्ट कॉपी कर रहे हैं और उनका रोल नंबर लिख के डाल रहे हैं, तो उस हाउ केस इज में क्या दैट करेंगे? हैपनिंग? बट एक अ, दूसरे का प्रोजेक्ट कैसे कुछ कॉपी कर रहे हैं? मतलब जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो हम लोगों ने ग्रुप्स में कुछ प्रोजेक्ट सेंड किए थे एज ए एग्जाम्पल कि ऐसे बनाना है. ओके, हाँ हाँ, बहुत लोगों ने ऐसे सेंड किए थे अपने प्रोजेक्ट्स. खुद के प्रोजेक्ट तो सेंड कुछ कर दिया. स्टूडेंट्स, हाँ हाँ, नहीं कि करना ऐसे चाहिए ना. बनाना है, क्योंकि वो नहीं हो रहा था उन्हें हाँ. बनाना, इसीलिए. Anyways, I will be evaluating. No, तो but then the problem is मुझे कैसे मालूम पड़ेगा ओरिजिनल प्रोजेक्ट किसका है ना? तो वी विल वर्क आउट. मैं क्या करूंगी पता है? आपके प्रोजेक्ट के बेसिस पे मार्क्स नहीं अलॉट करूंगी. आई विल ट्राई टू कीप सम सेशंस जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देना है. फेयर इनफ? ओके. या सो लेट अस सी, बिकॉज ऐसा कॉपी वॉपी तो नहीं करना चाहिए. इतने स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स भी ऐसा प्रोजेक्ट बना लेंगे. आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी डिफिकल्टी बाय द वे. और जो हेल्प भी कर रहे हैं ना, वो थोड़ा प्लीज अपना ब्रेन यूज करो कि आप आपका खुद का प्रोजेक्ट मत डाल दो उसके अंदर. एनीवन विल जस्ट कॉपी पेस्ट इट एंड पुट देयर नेम. ओके, सो हाउ विल द टीचर आइडेंटिफाई कि ओरिजिनल किसका है उसमें से, है ना? तो आई रिक्वेस्ट यू डोंट डू दिस. यू ऑल आर ग्रोन अप्स, एंड हेल्पिंग मतलब ऐसा हेल्प मत करो. ओके, कल आप बोलोगे मैं हेल्प करने के लिए उसका आंसर क्वेश्चन मतलब एग्जाम में उसको आंसर लिख के दें, दैट्स नॉट हेल्पिंग. ओके, हेल्प योर फ्रेंड्स इन सॉल्विंग द डाउट. डोंट सेंड योर प्रोजेक्ट्स लाइक दैट. We will see what can be done, Arya. Thank you for bringing it into my notice. Ma'am, हाँ बेटा बोलो ना. I'm about group leaders. हाँ, I have to. करिश्मा, this is just a day one, okay? and आज हम लोग already थोड़ा सा ये ऑफलाइन ऑनलाइन को adjust करने में अभी टाइम जाएगा. एंड आज TY का भी एग्जाम स्टार्ट हो रहा है. Give me some time, I'll definitely allot the group leaders as well. Okay. Okay. All right, guys. Then I meet you soon in the next class. You all have an amazing day ahead. Take care of yourself. Bye bye.